सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग आपके पास लेके आते थे? तो मदर इन लॉ को यार कैसे हमारी रिलेशनशिप ठीक हो, मेरा हस्बैंड ये ठीक हो जाए, मेरा ना ब्रदर ऐसा कर दे। बोलते ना जैसे डर के आगे जीत है, तो ऐसा कौन सा डर था जिसके आगे आप बढ़े? आंखों में डाल के बात नहीं करता, वो एक आदत बनी हुई है। जी साहब, जी साहब। आई हैड अ रियली इनिशियली स्ट्रगलिंग डेज इन माय बिजनेस एंड करियर। उस लेवल पे स्ट्रगल था। देयर वर चैलेंजेस दैट आई वर नॉट ओवरकम, और फिर आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, आपको परेशान करते हैं। यू आर नॉट वर्दी इनफ, आपने इसको कैसे कॉन्कर करा? आई नो आई एम वर्दी, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीबॉडी दैट आई एम वर्दी। इफ बिल गेट्स आल्सो कम ना, वो आंखों में खेलने की बात। आई कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Creative Club was luck by chance. It's not the people around you change. When you change, people around you change. Everything will happen like. From the heritage city of Jaipur, where craftsmanship meets legacy, today's guest represents the beautiful blend of tradition, vision, and gratitude. So here we have the creative force behind Jewels of Jaipur and the co-founder of Gratitude Club, Ankit Lodha. Thank you very much. He's not just the mentor of thousands of people, he is even my mentor. And today I feel so privileged and I am feeling so blessed that I could take a podcast with him. Thank So I welcome you on board with us. Even I also feel very privileged to be on your podcast. Thank you. And it has been truly our pleasure that, we can have your insights on our podcast today. If I want to ask you a question, what are you beyond jewelry, business and titles? So, अगर आप मेरे से पूछो ना, if you ask me what is beyond jewelry and beyond total, is like helping people to grow in life. So for me, my life purpose is on this line, to inspiring people to create an extraordinary life. Okay. So for me, beyond jewelry is all about that, helping and inspiring people to create an extraordinary life. So when it comes to Gratitude Club, when it comes to Jewels of Jaipur team, when it comes to Jewels of Jaipur customers, it's all about that, nothing else. Wonderful. So, you are helping people and that gives you that is your purpose of life. That's my purpose of life. So extraordinary means beyond some ordinary. So Okay. something which is a little bit of being an ordinary. That's what my purpose, and that's what drives me. Wow. That gives me the kick. लवली. सो ऐसी कौन सी बिलीफ है जो आपने बचपन से आज तक आप लेके चल रहे हैं, आपको लगता है उस बिलीफ ने आपको बहुत गाइड किया लाइफ में? So अगर मेरे से पूछो, one of the strongest belief is you are human first. So for me, everything starts with humanity. Believe that you are human first, and human is all about serving and caring. So दिल से आप किसी की सर्व करो and care for others. That's one of the beliefs I still hold in my life, and that drives me to my purpose. So it's that you are human first, and humanity is all about serving and caring for yourself, people around you. Okay. जब कोई बिलीफ आपने रख रखी अपने साथ, तो ऐसी कोई बिलीफ भी होगी जो आपको अनलर्न करना हुआ होगा, कि लाइक चाइल्डहुड से आपकी कोई ऐसी बिलीफ होगी जो आपने जब आप अडल्ट हुए तो आपको लगा कि नहीं, वो बिलीफ आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है एंड यू हैव टू अनलर्न दिस. हम हमारे अनकॉन्शियसली जो डिसीजन लेते हैं ना लाइफ में, वो हमारे चाइल्डहुड के से आते हैं. मेजॉरिटी बिलीव्स कम फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. सो बेसिकली आज भी मैं मानता हूँ मेरे अंदर एक इनर अंकित लोढ़ा, छोटा, दैट इनर अंकित लोढ़ा, एंड सम ऑफ द बिलीफ व्हिच आर नॉट हेल्पिंग मी, सम ऑफ द डिसीजंस दैट आर नॉट हेल्पिंग मी आर टेकन बाय दैट इनर चाइल्ड ऑफ अंकित लोढ़ा. तो मतलब ऐसे तो मतलब आई हैव रिविजिटेड माय चाइल्डहुड, लाइक मे बी आई डू इट एवरी सिंगल डे, बट ऐसे बहुत बहुत बिलीफ थे. मुझे याद है मैं जब छोटा था, मेरा एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ शेयर कर रहा हूँ मेरे बारे में, कि बहुत छोटा था मैं, और हमारे घर में ना एक गेट टुगेदर था, सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी. तो सब छोटे भाइयों के लिए हो सकता है, मतलब बंदूक आई थी, छोटी बंदूक, और लाल कलर की थी, और मतलब बहुत अच्छी लग रही थी कि सब लोग बच्चे बंदूक से खेल रहे थे. मुझे वो लाल बंदूक नहीं मिली, है ना, या कम थी या जो भी थी. उस समय है ना, मैं बहुत रोया उसके लिए. मुझे आज भी वो मेमोरी है ना, बहुत वेग सी याद है. तो वो था कि, और पापा ने समझाया कि मैं तेरे ला दूंगा, कर दूंगा. उस समय ओके हो गया. बट उस समय से ये हुआ कि यार, मे बी आई एम नॉट डिजर्विंग इनफ. मेरे को है ना वो बंदूक नहीं मिली. और वो बिलीफ बहुत समय तक ये था कि यार कोई भी अच्छी लाल शाइनी चीज मुझे मिलती
तो वो मिलके वापस चली जाती। मुझे समझ नहीं आता यार ये मुझे क्यों हॉन्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जब मैंने मेरे रिविजिट करा ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ये वाला जो बिलीफ है ना कि आई एम नॉट डिजर्विंग इनफ यार, काइंड ऑफ दैट, वो उस इंसिडेंट से आ रहा है, उस जगह से आ रहा है। एंड दैट होल बिलीफ वाज ड्राइविंग माय होल लाइफ टू दैट लेवल ऑफ व्हेन आई डिस्कवर्ड इट एंड गॉट रिलीज फ्रॉम इट। सो आपने जब ये वाली बिलीफ थी आपकी कि यू आर नॉट वर्दी इनफ, आपने इसको कैसे कॉन्कर करा या कैसे कन्फ्रंट करा उस बिलीफ को? सो देखो क्या होता है, आप अगर बिलीफ को अगर पिन पॉइंट कर लेते हो कि जिस मेमोरी से आता है, तो 50% रिलीज वहां से हो जाता है, ठीक है ना। सो व्हेन यू जस्ट पिन पॉइंट दैट विच मेमोरी एंड विच थिंग दैट ये चीज वहां से निकली है, तो ऑटोमेटिकली एक तो अवेयरनेस में जाता हो कि हाँ यार ये है, ठीक है। अब क्या होता है, आप जब लाइफ जीते हो, देयर आर इंसिडेंट्स एंड यू हैव टू एक्ट। व्हेन यू एक्ट एंड व्हेन यू गेट, ऑटोमेटिकली बिलीफ की एक साइकिल चलती है इन्फिनिटी की, ओके। ठीक है ना। कई बार होता है कि आप जैसे एक लेवल आपने अचीव कर लिया, तो आप बोलते हैं हाँ यार मैं इसका तो वर्दी हूँ, और आप दूसरे लेवल के लिए अचीव करने का सोचते हो, तो वहां पे फिर से ये बिलीफ, यही चीज आती है कि अरे यार ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लेकिन वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, कांस्टेंट चीज है, और Okay. कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को इवॉल्व करते हो, फिर आप अचीव करते हो, फिर आपने, क्योंकि आप ह्यूमन माइंड इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। तो आप ग्रोथ और एवोल्यूशन करते जा रहे हो, हर एक स्टेज पे, हर एक वक्त एवोल्यूशन करते जा रहे हो। तो ये जो बिलीफ है, आई एम नॉट वर्दी इनफ या आई एम नॉट गुड इनफ, तो कहीं ना कहीं वो जो मेमोरी है, अब वो इट्स, पहले एक समय में था कि वो मेमोरी सोचता भी था तो उसका एक इमोशनल रिएक्शन था, अब वो इमोशनली कोई रिएक्ट नहीं करती, वो मेमोरी है, ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ थी, और वो आ रही है, जा रही है, खत्म। आई नो आई एम वर्दी, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीबॉडी दैट आई एम वर्दी, बस दैट्स इट। सो आपने उसकी एम्पावरिंग बिलीफ बनाई दैट हाँ, मतलब एम्पावरिंग रिलीज इज वन पार्ट ऑफ इट, बट अगर आप उसमें एक्ट नहीं करोगे ना, तो आपको वो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उससे वो एक होगा कि हाँ एक एफर्मेशन बन के रह जाएगा। एंड एफर्मेशन एक लेवल पे वर्क करते हैं, until unless you act on that affirmation. You need to act on that affirmation to make it real in your life. That's most important. और ऐसा कोई आपका चाइल्डहुड फियर रहा हो जिसको आपने अभी अभी कुछ टाइम पहले कन्फ्रंट किया, या फिर आपने कहा कि अब मेरे को इस फियर से बाहर निकलना है? बिकॉज बोलते हैं ना जैसे डर के आगे जीत है। सो ऐसा कौन सा डर था जिसके आगे आप बढ़े एंड यू सॉ द विक्ट्री, यू सॉ द विन? आंखों में डाल के बात नहीं करता था किसी से। मैं जनरली है ना, मेरी आंखें नीचे होती थी, या इधर देखता था उधर देखता था, ये बहुत छोटी बात है, बट देन अगेन इट वाज, मेरे को ऐसा लगता था यार कम्युनिकेशन है ना अधूरा रहता है इफ यू डोंट सी इन पीपल्स आईज एंड यू जस्ट डोंट फेस इट। एंड आई हैड दैट फियर दैट मैं आंखों से आके, क्योंकि क्या होता है ना, बचपन से सिखाया गया है कि भाई मानो आंख में नीचे करके बात करो, या बड़ों के सामने ऐसे बात नहीं करते, ऐसे नहीं करते। तो एक आदत बनी हुई है कि जी साहब, जी साहब। तो वो बिलीफ को कॉन्कर करने में, या वो एक फियर को कि हाँ आप यू कैन सी अदर पीपल्स आई एंड टॉक, यस, that is something that is not recently, but yes, this is one of the fears of childhood that I have worked out, and it's very comfortable now that I can talk anybody. If Bill Gates also come na, वो आंखों में आंखें डाल के बात कर on that. वंडरफुल। आई थिंक सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंस भी एक उससे बहुत बूस्ट होता है व्हेनेवर इन अ कॉन्वर्सेशन, जब आप आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने फॉर्म किया था ग्रैटिट्यूड क्लब, सो आपको क्या लगा जब व्हेन यू मेट सो मेनी पीपल, व्हेन यू इंटरेक्टेड विद सो मेनी पीपल, क्या लोग ग्रैटिट्यूड तभी प्रैक्टिस करते हैं जब स्ट्रगल करते हैं? देखो, मैं ये बोलूंगा, आपको लाइफ में जब कोई चीज आपके जीवन में नहीं होती है ना, आपको उसकी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ती है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, देयर आर पीपल हु आर रियली ग्रेटफुल इन देयर लाइफ। आई हैव मेट सो मेनी ऑफ पीपल हु आर नेचुरली ग्रेटफुल। Okay. So, they are naturally grateful to everything in their life. And I've seen them very happy, always having smiling face, always, मतलब उनके साथ बैठ के ना वाइब्स ही अलग होती है। सो ऐसा नहीं है कि लोग ग्रैटिट्यूड जब भी प्रैक्टिस करते हैं कि जब वो स्ट्रगल होता है, कुछ होता है। इट्स ऑल अपॉन, डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल, उनकी कंडीशनिंग कैसे हुई हुई है, एंड हाउ द लाइफ हैज बीन हैपनिंग टू देम, ये चीज है। राइट। सो जब आप ग्रैटिट्यूड क्लब में यू वर टेकिंग सेशंस एंड आप मेंटरिंग कर रहे थे, तो आपको ऐसा क्या लगा? व्हाट वाज दैट पर्सनल गैप दैट यू वर ट्राइंग टू फिल? ग्रैटिट्यूड क्लब वाज लक बाय चांस, टोटली लक बाय चांस। मतलब मेरे को आई हैड अ रियली इनिशियली स्ट्रगलिंग डेज इन माय बिजनेस एंड करियर,
ऐसा नहीं है कि बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, ग्रोथ नहीं हो रही थी, बट लेकिन जो डिजर्विंग ग्रोथ थी ना, कि जो मतलब ब्रांड डिजर्व करता था, वो ग्रोथ नहीं थी। उस लेवल पे स्ट्रगल था, उस लेवल पे देयर वर चैलेंजेस दैट वर नॉट ओवरकम, और फिर आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, आपको परेशान करते हैं। एंड वन डे वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी दिस बुक, एंड जिस दिन से मेरे को याद है मैंने ये बुक करी थी, इट वॉज मंथ ऑफ अगस्त, आई स्टिल रिमेंबर, एंड यू नो दैट होल मंथ ऑफ अगस्त वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मंथ आई हैड इन माई एंटायर लाइफ। और फिर मेरी एक हैबिट है कि जो मैं खुद सीखता हूँ ना, मैं आई ट्राई टू शेयर, I try to share with my family, I try to share with my friends, I try to share with my people whom I am working with. वो मैं बोलता था यार मैजिक बुक करो यार, इतने मेरी लाइफ बदल दी यार, करो। मैं सबको देता ये करो ये करो, जनरली मैं ही देखता था कि यार लोग है ना 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, छठे दिन छोड़ देते हैं। वो है ना मोमेंटम को बिल्ड ही नहीं कर पाते थे मेजोरिटी समय। तो मैं बोलता था यार आपकी क्लास मैं लूंगा, मैं मेरे ऑफिस के अंदर जाके बोलता था कि यार आओ अपन मैजिक पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वो उस समय से था, पर लेकिन वो इवेंचुअली ना कभी भी वो बैठ नहीं पाता, क्योंकि कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो बैठा नहीं। ठीक है, तो वंस इन नो अब कोविड आया, कोविड में इनिशियली 6-7 डेज वी वर ऑल्सो वेरी स्पेक्टिकल, क्या होगा, कैसे होगा, लाइफ कैसे होगी। एंड फिर एकदम से आया कि यार हमारे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था कि अंकित चलो सब लोग मैजिक बुक वापस चालू करते हैं, तो वी स्टार्टेड डूइंग मैजिक बुक। और मैजिक या ग्रैटिट्यूड का जो एक असर होता है ना, आप विद इन 7 to 8 days यू कम इनटू दैट एनर्जी दैट ओह एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी गुड इन योर लाइफ। राइट राइट। तो वो मोमेंटम में आ गए। अब जब आप पूरी वर्ल्ड ओवर वहाँ कोविड में हर कोई चना नेगेटिव चल रहा है, और आप अप्रैल के मंथ में वापस से फैक्ट्री रीओपन कर रहे हो, पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि यार मतलब कर क्या रहे हो, क्या सोच रहे हो। और हम उस वक्त भी ये बोलते थे यार मैजिक बुक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप भी कर लो। तो लोग करते वही 4 दिन करते, 5 दिन बैठ जाते। तो मैं और रवि भाई मेरे जो फ्रेंड है जिन्होंने चालू किया, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, और मन में मैंने ही बोला यार, मैंने रवि भाई ये मेरे को एक आइडिया है, ये एक ऐसी चीज है अपन कर सकते हैं, मतलब आप अगर इंटरेस्ट हो तो अपन दोनों साथ में करते हैं। तो बोलता अंकित डन है। तो मैंने बोला नाम क्या रखेंगे। तो उन्होंने सोचा करा, उनके से नाम आया कि अंकित यार नाम ग्रेटिट्यूड क्लब रखेंगे। मैंने बोला यार हैप्पी ये करते हैं वो करते हैं, नहीं। उन्होंने चलो नाम ठीक है, ओके डन। तो हमने ना बड़ा सिंपल सीधे तरीके से बोला यार चलो चालू करते हैं। डेट अनाउंस करी 7 दिन बाद कि भाई हम 30 मई को पहला सेशन कर रहे हैं ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो 30 तारीख को मैनिफेस्टेशन का पहला सेशन रखा, और मुझे आज भी ध्यान है हमने ग्रुप में करा था, व्हाट्सएप ग्रुप्स में 70 to 80 या 65 to 70 लोग आए थे 30 मई को। That's a good number. हाँ मतलब वो हाँ मतलब हमारे लिए था कि ठीक है इतने भी आ गए तो बहुत है। मतलब वी वर वेरी हैप्पी। और अगले दिन से हमने चालू किया, एंड यू नो फर्स्ट डे से 70-80 पीपल थे, 3rd-4th डे से तो 100 पीपल हाउसफुल होता था। और जूम उस वक्त 100 डेज पीपल का ही था हमारे पास, और 100-200 पीपल हमारे उस पे होते थे यूट्यूब लाइव के ऊपर। तो वो और करते करते उसमें विद इन अ मंथ 800 लोग हो गए। और मैजिक की जो शेयरिंग थी ना, इनिशियली जो मुझे था कि अच्छा ये अच्छा ऐसा काम भी हो रहा है, तो 21वें 22वें दिन से जो लोगों की शेयरिंग्स आने लगी, जो लोगों के यू नो मैजिकल चेंजेस आने लगे, मैं और रवि भाई वर अमेज्ड कि यार हमने ये क्या किया है, मतलब ये कैसे हो रहा है। बट इवेंचुअली इट वाज ऑल यू नो दैट बिगर पावर ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स ब्लेसिंग, दैट वो अपने आप मोमेंटम बनता गया। एक सेशन खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो And I remember एक सेशन में तो आपके 1000+ लोग थे। हाँ 100% मुझे भी ध्यान है आज की, वो 1000 होते थे। और आपको और बताता हूँ 300 लोग यूट्यूब लाइव होते थे उस वक्त जब मैं देखा उस था। टाइम पे लोग वेट करते थे कि कैसे ऑन होगा, एंड पहले हम लॉग इन कर ले, अदरवाइज हम लाइव सेशन में नहीं आ पाएंगे, एंड वी हैव टू सी द यूट्यूब लाइव। हाँ हाँ So yes, that is the success of Gratitude yes. Club, and you have changed so many lives. You have impacted so many lives. Of course, you know, जो लोग भी उसमें as members रहे हैं, you know, we all know that, you know, it was such an impactful journey. So Yes. all thanks to you. Thank you. But I must tell you, it was not me alone. It was me, my co-founder Yeah. Ravi bhai, and then there was people around. Because जो आप लोग थे ना, आप लोगों की जो शेयरिंग थी ना, that also changed. मतलब ट्रस्ट मी, जो लोग आके मैजिकल शेयरिंग्स करते थे, अपने क्वेश्चंस पूछते थे, और उनसे जो अदर लोगों को ओपनिंग होती थी ना, तो इट्स मतलब ठीक है, देखो मैं और रवि भाई हमारा काम कर रहे थे, बट आप लोगों ने भी जो काम किया ना, दैट रियली हेल्प्ड अदर पीपल ऑल्सो। एक्चुअली क्या एज में एग्जैक्टली आप सेल्फ अवेयर हुए, नॉट जस्ट प्रोफेशनली बट पर्सनली एज वेल? क्योंकि यू नो जब हम बड़े होते हैं तब
जरूरी नहीं है कि सब लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, बट ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ लाइफ आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि नहीं, अब मैं यू बिकेम अवेयर अबाउट योर लाइफ कि नाउ आई हैव टू चेंज, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई हैव टू शिफ्ट थिंग्स फॉर मी? सो अगर आप कहो अवेयरनेस का लेवल अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन आल्सो, एंड इट्स, आई थिंक इट्स अ जर्नी ऑफ इन्फिनिटी। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं एब्सोल्यूट अवेयर में आ गया, ऐसा कभी भी नहीं है। बट आप ये कहो कि जर्नी ऑफ इम्प्रूविंग, जर्नी ऑफ लर्निंग कब चालू करी, तो मैं देखता हूँ उसको 3 या 4 भाग में। तो जब अर्ली एज की लाइफ थी तो तभी से थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और सर्विंग के ऊपर थोड़ा सा मेरा लर्निंग का हमेशा था कि ऑन दैट पॉइंट कि हाँ यार, कुछ सीखना है और कुछ करना है, आई वांट टू हेल्प अदर पीपल। तो एक ये वहां से वो जिज्ञासा और अवेयरनेस और वो थी कि हाँ यार, कुछ डेफिनेटली करना है। साइंस, अगर मैं कहूँ मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, मैंने करी कॉमर्स बीकॉम है, बट लेकिन इन 11th-12th आई हैड साइंस। और तब से ना ऐसा था कि इनोवेशन दिमाग था, कुछ मतलब कोई चीज भी है तो वो चीज के पीछे, उसके पीछे की साइंस क्या है, वो कैसे बनती है, क्या है उसको, ना मुझे बड़ा फैसिनेटेड था। तो मेरे को ना वो स्टोरी सुनने में, इनोवेशन सुनने में, मुझे मशीन बहुत पसंद थी, मशीन कैसे बनती है, अच्छा कैसे काम करती है। तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट मशीन। तो मेरा ना, अगर कहो कि आज मैं आई डोंट सी अ प्रोडक्ट, आई सी द इंजीनियरिंग विच इज हैपनिंग बिहाइंड द प्रोडक्ट। वो कैसे बना होगा, कैसे मशीन में डला होगा, किसने कौन से रॉ मटेरियल लाया होगा। तो वो एक कहते हैं ना अवेयरनेस, व्हेन यू आर अवेयर अबाउट थिंग्स अराउंड यू, तो एक वो अवेयरनेस वहां से आई। बट अगर आप कहो कि मैं जब बिजनेस के अंदर, जब मैं बिजनेस में आया और मैं जब बिजनेस करने लगा, तो मिड ऑफ द जर्नी मुझे लगा कि कुछ सीखना चाहिए। तो मुझे याद है मेरा पहला जो लर्निंग था वो इनिशियली मैंने ज्वेलरी कैसे बनती है वो सीखा, उसके बाद ज्वेलरी डिजाइनिंग सीखा। फिर मैं बिजनेस या लाइफ के प्रति, मतलब अराउंड 2019 आई अंडरस्टैंड दैट लाइफ के प्रति जो लेसन्स हैं, उससे वो जर्नी वहां से चालू हुई। दैट आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट लाइफ एंड हाउ लाइफ वर्क्स एंड हाउ योर थॉट्स, बिलीव्स स्टार्टेड इम्पैक्टिंग यू, और वो कैसे आज आपको लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इट वाज अराउंड 2019 जुलाई, आई स्टिल रिमेंबर। Okay, you remember the date as well. हाँ, आई रिमेंबर द डेट। Okay. So there must be some incident जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, now I have to change. I have to. ऐसा इंसिडेंट नहीं बोलो, ये मतलब आप मानो कि ये कॉलिंग थी। तो किसी ने आपको आके वो दिया, तो एक सडन अवेयरनेस में आती है और सडनली यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। सो वो एक कहते हैं ना सडन शिफ्ट था, और वो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली, और उसके लिए ना कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो सडन, जिसे कहते हैं ना, एक नेचुरली था। जब आप ग्रेटिट्यूड क्लब में भैया थे, आप सबको टीचिंग्स दे रहे थे, तो आप ऐसी कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको लगा कि लोग आपके पास लेके आते थे? व्हाट वाज द मेन एरिया जहां आपको लगता था सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? सो मैं ना इसको ऐसे लेता हूँ कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज रिलेशनशिप। तो मैं ना आप और मैं एक रिलेशनशिप हो गए, एक हस्बैंड वाइफ एक रिलेशनशिप हो गए, मदर फादर एक रिलेशनशिप हो गए, ठीक है ना। वी हैव रिलेशनशिप टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो मैं ये बात करता था कि जो अगर कोर कहूँ ना, एक आदमी की खुद से रिलेशनशिप अगर वो सॉर्टेड है ना, तो आपकी रिलेशनशिप अराउंड सॉर्टेड हो, बिकॉज लेवल 1 यू स्टार्ट विद योरसेल्फ। तो मुझे लगता था कि यार, आप लोग है ना जनरली चाहते थे कि मतलब मेजोरिटी बोले, यार हमारे ना अंकित भैया, हमको ये बताओ ये कैसे मैनिफेस्ट करे कि हमारी, मतलब हंसने की बात नहीं, मतलब मदर इन लॉ को यार कैसे हमारी रिलेशनशिप ठीक हो, मेरा हस्बैंड ये ठीक हो जाए, मेरा ना ब्रदर ऐसा कर दे। मैं बोला था यार एक ही बात, मैंने बोला बॉस देखो, दुनिया नहीं बदलने वाली, बदलना आपको है। आप बदलोगे ना तो दुनिया आपके आसपास बदल जाएगी। सो मेरा जनरली हमेशा एक ही बात रहा है, इट्स नॉट द पीपल अराउंड यू चेंजेस, इट्स यू हु चेंज। व्हेन यू चेंज, पीपल अराउंड यू चेंज, योर सराउंडिंग चेंज। बेसिकली आपके सराउंडिंग में सिंक्रोनिसिटी आ जाएगी, दैट एवरीथिंग विल हैपन लाइक विदाउट एनी फोर्स। Okay, so any tip, anything that you can give to our viewers that खुद पे कैसे काम करे, relationship itself कैसे improve करे? देखो, रिलेशनशिप इज सेल्फ में ना, सबसे पहले आप अपने, मैंने ये भी एक प्रैक्टिस है ना खुद के लिए फॉलो करी। हर एक जीवन में ना, देखो लाइफ के अंदर आपके हर वक्त एक हाई पॉइंट्स होंगे, जब आप लाइफ में बहुत हाई गए होंगे,
और एक आपके लोअर पॉइंट्स होंगे जब आप लाइफ में बहुत लो गए होगे, ठीक है ना। मैं अभी ये बात करता हूँ लाइफ के हायर पॉइंट्स। देखो अपनी लाइफ की जितनी भी पूरी जर्नी है अपनी लाइफ के अंदर, ये देखो कि यार मैं कब बहुत ऊपर गई थी और कब पूरी नीचे आई। पूरा एक ग्राफ को डिजाइन करो, ईयर वाइज कर लो, या होता है ना कि हाँ यार ये साल में बहुत अच्छा गया था, ठीक है। तो आपके कुछ पीक्स होंगे लाइफ के, हायर पीक्स होंगे। वो हायर पीक्स में आपको आपकी जो स्ट्रेंथ और एनर्जी है ना, उसका राज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी लाइफ का कोई भी एक एरिया साल लो जब आपने एक्सट्रीमली वेल, यू आर वेरी हैप्पी, देयर वाज समथिंग, यू डिड समथिंग डिफरेंट एट दैट एज, एट दैट टाइम। देयर वाज सम गुरु और देयर वाज सम नॉलेज, देयर वाज सम डिसिप्लिन दैट यू आर फॉलोइंग। जनरली क्या होता है, जब हम हाई पे पहुंच जाते हैं ना, हम जिस डिसिप्लिन से वहां पहुंचे थे वो छोड़ देते हैं। आप वापस जाओ, वो पीक्स देखो, आप वो आइडेंटिफाई करो कि यार ये क्या डिसिप्लिन था जिससे मैं वहां पे पहुंची। वो डिसिप्लिन को आइडेंटिफाई करके अगर आप लाइफ के किसी भी एरिया में और आप बोलते हो कि यार वो एनर्जी महसूस नहीं हो रही, ट्रस्ट मी, वो डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं कर रहे। जब आपको डिसिप्लिन डबल करना था, आपने डिसिप्लिन को छोड़ दिया। क्रैश तो होने ही, एनर्जी लो होनी ही थी। अगर एनर्जी को कंसिस्टेंटली आपको मतलब स्टेबल करना है या ग्रो करना है, आपको डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन जिससे आप वहां पहुंचे थे उसको वापस लेके आना पड़ेगा और उसको डबल करना पड़ेगा, डबल द एनर्जी। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इफ यू नीड टू रियली रीडिस्कवर योरसेल्फ, बिकॉज जो लाइफ में आप पीक पहुंचे थे ना, तब आप अपने अंदर से, अपने मन से बहुत खुश थे। वो डिसिप्लिन को रीडिस्कवर करो, उस पर काम करो। एंड सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, स्टार्ट लविंग एवरीवन अराउंड यू अनकंडीशनली। जैसे जो लोग हैं उनको जैसे वो है वैसे प्यार करना चालू करो, बल्कि जो आप जितना आप प्यार करते हो ना, उसको डबल स्पीड से करना चाहिए। लव अनकंडीशनली पीपल आर। इफ यू वांट टू रियली ग्रो एट कंसिस्टेंटली स्पीड, और देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। ट्रेजेक्टरी ऐसी होनी चाहिए कि आप ग्रो कर रहे हो, आप जो पीक्स हैं, बट इवेंचुअली व्हेन यू सी योर ग्राफ इट्स ग्रोइंग। तो इसके पीछे दो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वन इज द डिसिप्लिन दैट गॉट यू ऑन द अप एनर्जी, एंड सेकेंड इज द एनर्जी ऑफ लव। लव अनकंडीशनली टू ऑल पीपल। मे बी वो लोग आपको गालियां बक रहे हो, वो लोग आपको बारे में बुरा बोल रहे हो, डजेंट मैटर, बट उन लोगों से भी आप उतना ही प्यार करो जैसे आप अपने बहुत करीब अच्छे से करते हो। दीज थिंग्स विल ऑलवेज हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। लोग है ना, लोग आएंगे और तेरे बारे में बता क्या बोल रहा था वो, अरे यार वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, माँ मानोगे नहीं, मैं उनसे मिलता हूँ, मैं उनसे इतने प्यार से बात करता हूँ जिसकी हद नहीं। आई नो इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी, बट इट शुड बी योर नेचुरल सेल्फ। इसमें ना अगर आपके फेस पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इमोशनल ट्रिगर है। वो इमोशनल ट्रिगर को अगर आप फ्लैट नहीं करोगे, आप आओगे, ये बिलीफ है। और मैं मतलब अभी मतलब यही चीज है, यही लाइफ के अंदर जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये वाला, यार ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या बिलीफ है। और मैं अगर आपको बोलूँ ना, अगर आप मतलब अगर एक वर्ड, एक लाइन को अगर आप समझ गए ना, तो जो भी आपके साथ हो रहा है, इट्स, यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ। मतलब यू आर नॉट योर बिलीव्स, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर थिंग, you are separate, your mind and body is separate, and when you start seeing it, love becomes a natural part of you. Spirit, your soul is बच्चा, इसको हंसना, आप जब हंसते हो ना, राइट, your kid, योर इनर चाइल्ड बिकम्स हैप्पी। और बच्चा कैसा होता है कि फॉरगिव कर दिया, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फॉरगेट कर लिया, हाँ आगे बढ़ो यार, हो गया चलो ये ठीक है। ये हम जब जितने बड़े होते हैं ना, उतना करप्शन मन में आता है, उतना लिमिटिंग बिलीफ हम में आता है, उतना हमारा माइंड हैवी होता है अपने पे। आप बच्चे को देख लो, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज ट्रू सोल इज। उसको आप डिसिप्लिन देखो ना, सुबह उठने से लेके शाम तक सोने तक उसकी एनर्जी कहीं कम नहीं होती है। वो लविंग में कहीं आप चले जाओ, यू विल, आपको अगर ट्रू लव का एहसास है ना, यू गो टू अ किड, हर चीज से प्यार करेगा।
That's how the soul is. So true. So you have to get near to your soul. And near to your soul is loving yourself unconditionally. Your काम देना है. Life का force, when you start giving love, you will receive love from unknowing sources. Can't even imagine. And life जो happens. देते हैं वो तो वापस ला देगा ही लौट के. हाँ. So, of course. So, such wonderful insights, and I'm sure that all our viewers are going to get benefited out of it. So, thank you so much. Thank you very much. It has been so wonderful to take his podcast, and thank you so much, all of you.